आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। फोकस इस समय की डेब्यूटेंट पर। विजया डायग्नोस्टिक ने आज दरअसल अपनी पारी की शुरुआत की। याद रखिएगा इशू प्राइस इस कंपनी का 531 था। ये एक लार्जली ओएफएस था और उसके सामने 542 पर इसकी लिस्टिंग हुई, लेकिन इस समय स्टॉक आपके सामने 580 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 9% का इजाफा देखने को मिला है इसमें इशू प्राइस के या लिस्टिंग के बाद। हमारे साथ अब कंपनी की सीईओ सुप्रीता रेड्डी जुड़ गई हैं और साथ ही साथ ईडी सुनील चंद्र कोंदपल्ली। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस ऑन द लिस्टिंग। सुप्रीता, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि ये इशू आप लेकर आए, कुछ प्रमोटर्स ने एग्जिट लिया, लार्जली आपके पी इन्वेस्टर्स को आपने एग्जिट दिया। यहां से आगे का प्लान क्या है? सबसे पहले क्या प्रमोटर्स का इरादा है कुछ और स्टेक बेचने का या फिर करंट शेयर होल्डिंग बरकरार रखेंगे? Thank you for having us on CNBC. It's a big day for us today at Vijaya. And yes, it is a pure offer for sale, and we had a PE investor. He still remains with 10%. He's only sold 30% offering. And the promoters have sold 5%, and there is absolutely no intention from the promoter side to dilute anything going forward. It'll be the way it is. And we have a clear visibility for the company growing in our home market. So we definitely have a clear vision on where we see ourselves in the next 2 to 3 years. और जिन होम मार्केट्स में आप हैं, मैं देख रही थी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में आप लोगों का दबदबा है, स्पेशली द पैथोलॉजी मार्केट। 65% रेवेन्यू उस बिजनेस से आता है। व्हाट आर द प्लान्स गोइंग अहेड सुनील, अगर इसका हमें एक अंदाजा दे सके? क्योंकि जब आप लोग डीआरएचपी लेकर आए थे, आपने स्पेसिफिकली कहा था यू आर कैश रिच, यू डोंट रियली नीड फंड्स, बट नाउ दैट यू आर लिस्टेड, इफ यू कुड गिव अस अ विजिबिलिटी कि अब बिजनेस में कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी दोनों रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी डिविजन्स के लिए? हाँ, so actually right from when our founder Dr. Surendranath Reddy founded this company in 1981, we have been an integrated player. So we have always done pathology, radiology, advanced imaging. The idea was that the patient can come to a center and get everything under one roof for convenience. So we have always grown with this as our model. And if you look at this mix, 65% from pathology and 35% from radiology, it will probably continue. The last 3-4 years, we have not seen much change in this. So I think it is a stable kind of number. And going forward also, I think the idea is to grow, keeping the same business model in place. So we don't see. Because of the mix itself, you see that being an integrated player, our per footfall revenue is the highest in the industry. So we are able to have more offering to a customer because of both pathology and radiology being present in all of the 81 centers. So we definitely look at this mix remaining more or less stable with just a few maybe a 0.5% here and there, not more than that. Okay. And, of course, it's been a big day, emotional day, so we are just happy to get back to work. Yes. So I think there's no plans for the promoters to dilute. We will continue to work on growing the business. I'm sure you will. And यही आपके दर्शक भी देखना चाहेंगे या फिर निवेशक देखना चाहेंगे। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी सुप्रीता, आपका मार्केट तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, यू हैव ग्रेट एक्सपोजर देयर, यू आर परहैप्स द लार्जेस्ट प्लेयर। क्या दूसरे राज्यों में एंटर करने का प्लान है और कौन से राज्य रहेंगे? Even in Andhra and Telangana today, out of the 5,100 out of hospital diagnostic market, being the largest in that region, we still only have 7% of the market share. So if you ask me, there's a lot of headroom to grow in this market and grow deep into our tier 2 regions. Other than that, our focus, and we have clear visibility on adjacent geographies. These are bordering states of Andhra and Telangana with a close proximity of say 4 to 5 hours from road. So our main focus will be to go into these areas in the next few years, and also Eastern India. We've also acquired a company called Medinova, and we will now start to ramp up and grow in the eastern part of the country as well going forward. So when do we see labs opening in Eastern India and the adjoining states that you mentioned? Do you have a timeline in hand? In the next 2 to
Yes, in the next 2 to 3 years, you will see we already have a lab in East India. You will see more of the spokes and the hubs coming up, and the adjacent geographies definitely in the next couple of years. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए। इनफैक्ट अगली बारी डिटेल में चर्चा आपसे करेंगे। आज लिस्टिंग का बड़ा दिन है, आपको इनफैक्ट जाकर सेलिब्रेट भी करना है आपके अपने कर्मचारियों और ऑफ कोर्स अपने सहयोगियों के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द डेब्यू। Thank you so much. Thank you so much. वो स्टॉक आपके सामने 580 के आसपास ट्रेड कर रहा है। विजया डायग्नोस्टिक कारोबार में अब कई कंपनियां हैं इस समय बाजार में लिस्टेड। इस बीच गोदावरी पावर एंड इस्पात शेयर विभाजन पर कंपनी ने दरअसल अप्रूवल दे दिया है। एक शेयर को 2 में बांटने की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, तो स्टॉक स्प्लिट आया है 1:2 का। ये है फिलहाल आपके लिए अपडेट गोदावरी पावर एंड इस्पात की तरफ से। स्टॉक है करीब 60 रुपए ऊपर। इस खबर पर सुबह से अपर सर्किट पर लगा हुआ है। चलिए फटाफट आपको दिखा देते हैं हमारे जानकारों ने आज जो नए ट्रेड्स डाले उसका कितना फायदा दरअसल उनके पोर्टफोलियो में बनता दिखाई दे रहा है। एक एक करके तीनों पोर्टफोलियोज पर एक बार नजर डालेंगे और एक आउटलुक भी आपके लिए लेकर आएंगे कि इस समय रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है। तो विकास सालुंखे का पोर्टफोलियो नोसिल तेजी का ट्रेड होल्ड किया, 320 का टारगेट। डीसीएम श्रीराम 1060 के टारगेट के लिए होल्ड किया। मिसगांव डॉक नया ट्रेड है, 272 का टारगेट, यहां पर 242 का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। चलिए रिटर्न्स देखिए। डीसीएम श्रीराम 0.39% की बढ़त दिखा रहा है। मसगांव डॉक ने इनके लिए अच्छा कंट्रीब्यूट किया, करीब 1.32% के रिटर्न्स। नोसिल आज थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ। अब आइए पुनीत तिवानी के पोर्टफोलियो पर। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज नया ट्रेड है, 436 का टारगेट, 395.90 स्टॉप लॉस। वोल्टास भी नया जोड़ा, 1325 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1199। इप्का लैब्स को कैरी कर रहे हैं 2800 के टारगेट के लिए। अब देखिए रिटर्न्स क्या बन रहे हैं तीनों ही ट्रेड्स में। और इप्का लैब्स आधा % ऊपर, वोल्टास हल्की सी बढ़त और नियरली आधे % के रिटर्न्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेज कमाकर दे रहा है। अब आइए मीरज वोरा के पोर्टफोलियो पर। मीरज ने दरअसल एक ट्रेड जोड़ा है और वो है एंड्योरेंस। 1617 का भाव है, 1830 का इन्होंने दिया है टारगेट और 1560 का स्टॉप लॉस। जाइडस को कैरी किया 2790 के टारगेट के लिए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी होल्ड कर रहे हैं 1550 के टारगेट के लिए। रिटर्न्स देखिए, हाल 1.5% ऊपर आज। जाइडस वेलनेस हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। एंड्योरेंस इस समय ठंडा है, ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करके नहीं दे रहा है। अब तीनों के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, देखिए क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो विकास सालुंखे निकल चुके हैं फिर आगे, 4.5% के रिटर्न्स इनके। पुनीत तिवानी अब आपके सामने करीब 1.5 से 2% के रिटर्न्स के दरमियान और 1% के रिटर्न्स है मीरज वोरा के। तीनों ही जानकार अब पॉजिटिव रिटर्न्स कमा रहे हैं। यह है फिलहाल आपके लिए नए ट्रेड्स जो आए हैं और उसका ओवरऑल रिजल्ट। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन बोनस का भी ऐलान हुआ है गोदावरी पावर एंड इस्पात में। 1:1 का बोनस, 1:2 का स्टॉक स्प्लिट। ये फिलहाल अपडेट आया है गोदावरी पावर एंड इस्पात में और स्टॉक को 5% के अपर सर्किट पर टिका हुआ है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।